سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں اور ہمارے کچھ دوسرے پروفیشن سے بھی لوگ ہوں. ابھی کچھ فار صاحبان بھی وہ بھی پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. خاص طور پہ شکریہ دوست کا جنرل کا کہ وہ بھی اپنا قیمتی وقت بتا کے یہاں پہ آئے ہیں. یہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں ہمارے, ہمیشہ جب بھی دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو سبھی کا شکریہ اور خاص طور پہ انجم بھائی کا ان کے اپنے ٹائم نکالنے کا. جویش بھائی ہمارے ساتھ اکثر کام کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ دوستوں کا شکریہ یہاں حاضر ہونے کا, ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کا. دوسرا جہاں تک این سی جے پی کا میرا خیال آپ میں سے بہت سارے دوست این سی جے پی کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں. نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس 1985 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. جو این سی جے پی ایکچولی پاکستان بشپ کانفرنس کے تحت ہیومن رائٹس باڈی ہے جو کہ پورے پاکستان میں ڈائسس میں خاص طور پہ, اور ہوپفلی آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ پاکستان میں 7 ڈائسس ہیں کیتھولک ڈائسس, جس میں آرچ ڈائسس آف کراچی ہے, حیدرآباد, ملتان, فیصل آباد, کوئٹہ, اس کے بعد آرچ ڈائسس آف لاہور اور راولپنڈی اسلام آباد ڈائسس. سب ڈائسس میں اسٹرکچر جو ہمارا ہے بڑا سمپل ہے. ہمارے ڈائسس بشپس ہیں 7 جو کہ پورے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. پی سی ڈی سی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس 7 کی مل کے کانفرنس ہے جس کے تحت یہ کمیشن جو ہے اپنی خدمات جو ہے پورے پاکستان میں دے رہا ہے. پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس کی وجہ سے ہر ڈائسس میں این سی جے پی کا ریجنل آفس ہے اور ہر ریجنل آفس میں ہمارا اسٹاف جو اپنی ہیومن رائٹس کی سرونگ کے لیے ڈائسس کے ساتھ مل کر وہاں پہ جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھ رہا ہو. اوور آل اگر آپ این سی ڈی پی کا دیکھیں تو 1985 سے این سی ڈی پی کا جو قیام تھا وہ جو اسٹارٹ ہوا اس کے لیے تھینک یو بشپ کو جنرل کریں بشپ جوزف. انہوں نے جب یہ این سی ڈی پی کا قیام رکھا تو ایکچولی جو قیام تھا وہ سب یہ تھا کہ اس وقت بلاسفیمی کا ایک نیا کیس جو کہ سامنے آیا تھا اور انہوں نے اس کے بھی فائٹ کی تھی کہ یہ بلاسفیمی کے رولز ہیں, ریگولیشن جو بھی اس طرح ہے اس کے ریویو کیا جائے. اور اس وقت این سی ڈی پی کو انٹروڈیوس کیا گیا کہ چرچ کیسے ان کیسز کو لک آؤٹ کر سکتا ہے. کیتھولک چرچ نے 1985 سے اس کی ایجنڈا کو لے کر ابھی تک ہم ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری ایک اینول رپورٹ جسے ہم ہیومن رائٹس مانیٹرنگ کہتے ہیں ایوری ایئر ہم وہ پبلش کر رہے ہیں. اس کو آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سمپل سی سی بھی لکھیں گے گوگل پہ تو ہماری ویب سائٹ پہ جو رپورٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی. لاسٹ 5 ایئرس کی رپورٹس وہاں پہ آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان چونکہ ہم صرف کیتھولکس پہ کام نہیں کر رہے بلکہ ریلیجیس منارٹی. اب ریلیجیس منارٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تمام ساری منارٹیز اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان کے کافی سارے ایچ آر ڈیز ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں, ہمارے ساتھ کافی سارے دوست ہیں جو کہ سنس لاسٹ 10 ایئر سے بڑے ایکٹیو ہیں. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا این سی جے پی کو نے اتنا بہترین ویوستھا سجایا جس میں ہر کلاس سے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے لوگ ہیں. جہاں تک بات انکلوڈ میں نے سنی نہیں یوسف گل صاحب کے حوالے سے میں ایک منٹ کی بات کنکلوڈ کروں گا. دیکھیں واٹ وی کین ایکسٹینڈ اور واٹ وی کین ریسیو. این سی جے پی میں پچھلے کئی عرصے سے این سی جے پی کے ساتھ بھی ایفیلیشن ہے, کام کر رہے ہیں ایز اے لائر اور اسی طرح اور بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے. بڑی سکسیس اسٹوری پہ بھی میں جسٹ ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈسکا میں ایک ریپ کیس ہوا تھا 7-8 سالہ بچی سارا اقبال کے ساتھ. میں نے وہ ٹرائی کیا. ایک آرگنائزیشن تھی انٹرنیشنل کرسچن کنسرن, اس میں اس کیس میں جو صاحب صاحب ہیں ان کی گائیڈنس تھی میرے ساتھ تھی. اچھا اس میں اس ٹرائل میں سزا کروائی. اس کے بعد وہی کیس این سی جے پی اپیل میں جو پرووائڈ کی اس میں بھی ہائی کورٹ میں نے سزا کروائی. اچھا بات یہ جو بات نہیں یوسف گل صاحب کر رہے تھے کہ ہم جوائنٹلی کام کیسے کر سکتے ہیں. میں ایز پریزیڈنٹ آف کرسچن لائرز ایسوسی ایشن
ये बात यहाँ पे जेपी के जो नई न्यूज़ गिर साहब है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक बात एक्सटेंड करना है। जहाँ कहीं आप समझते हैं कि आपके पैरामीटर्स में केसेस नहीं आते या आप ये केस नहीं करना चाहते और प्रोसिक्यूशन का मामला है, वहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो क्लैब लीगल असिस्टेंस एक्सटेंड करती है। यहाँ पे आप कोई भी केस हमें रेफर कर सकते हैं। हमारा क्रिश्चियन ऑयल एसोसिएशन की जो मेंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं और जो भी केस आप हमें रेफर करेंगे उसमें क्रिश्चियन ऑयल एसोसिएशन लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, वेदर वो एक ब्रिज का रोल प्ले करके डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ करें या वॉलंटियर करें, ये क्लैब के मेंबर्स ये जरूर करेंगे। वो मेरा राणा साहब से होगा जो सीनियर हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं NCJP का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत करके इस किस्म का ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और जिसमें माइनॉरिटीज़ के सब लोग मार्क्सवाइड क्रिश्चियन माइनॉरिटी की तो कोई दूसरी माइनॉरिटी का पता नजर नहीं आता। ये कमी है इसमें सबसे पहले कि सिर्फ ये लगता है कि क्रिश्चियन की मीटिंग है, माइनॉरिटीज़ की नहीं है। कि जहाँ तक हमारे क़वानीन का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान बार कौंसिल में फ्री लीगल एक सेल है जी जो इसमें जो लोग होते हैं उनके लिए वो काम करता है, जो मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनकी मदद के लिए बाकायदा एक वो टीम है, बाकायदा कानून है। इसी तरह पंजाब बार कौंसिल में भी है सबके लिए, उसमें भी ये नहीं माइनॉरिटी के लिए, सब जो भी गरीब गुरबा हैं, जो भी डेस्टिट्यूट प्रिजनर्स हैं, उनके लिए सारा इंतजाम होता है, वो अप्रोच करके होता है। हम भी उसके लिए लोगों को रेफ़र करते हैं, सारा कुछ होता है। जिस तरह से अभी मेरे भाई चेयरमैन रियाज अंजम साहब फरमा रहे थे, इन्होंने अच्छी बातें की हैं। कानून में बहुत गुंजाइश है आप लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी गुंजाइश है। फ्री लीगल एड बाकायदा वो मौजूद हैं चीज़ें, उसमें हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी फ्री लीगल एड मैं करता हूँ। कोई जो केस ना करता हूँ मेरे पास आ जाता है, मैं फिर करता हूँ उस पर जाकर। तो मैं ये नहीं कहता कि जाए मैं जरूर पैसे लेके आए या जरूर गए, अगर कोई अच्छी NGO मिल जाए तो अच्छी दिहाड़ी लग जाती है। लेकिन अक्सर बेचारे गरीब लोग होते हैं जो माइनॉरिटी की तरफ से आते हैं, वो अक्सर गरीब होते हैं, तो उनका जिनसे ताल्लुक आप लोग उनको लिफ्ट भी नहीं कराते, वो हमारे पास आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर फादर जी आपका और आपके सारे अदारे का। राणा साहब ने जो गुफ्तगू की बड़ी अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव थी एंड वी वर हैप्पी टू हियर दैट। राणा साहब ने एक बात की, कानून में गुंजाइश, कानून में गुंजाइश जरूर मौजूद है जनाब। हमारी मेजोरिटी के जहनों में गुंजाइश की कमी। हमारे बहुत सारे केसेस में, फोर्स कन्वर्जन के केसेस में मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जब मैं हाई कोर्ट में पेश होता रहा हूँ, सेशंस में पेश होता रहा हूँ, तो बताया कि लड़की 12 साल की है। नहीं जी, क्योंकि इस्लाम कबूल कर दिया, वर्ड है शी रीच द एज ऑफ मैंसन, तो इसलिए मैरिज वैलिड है, शरई कानून के मुताबिक। यहाँ तक बताया कि आपकी दफ़ा 375 ताज़ीरात पाकिस्तान जब आई थी तो उस वक्त 12 साल से कम उम्र की बच्ची कॉन्सेंट से भी फिजिकल रिलेशन में जाती है तो रेप होगा। फिर 14 साल हो गई, फिर 16 साल हो गई, अब 18 साल से कम हो गई। थैंक यू। तो फिर अगर वो रेप था तो फिर ये उसकी कॉन्सेंट कैसे आ गई इस बच्ची की? नहीं जी, क्योंकि वो शरई लॉ है। मामला ये है, आपका क्वेश्चन मुझे याद है जी, मैं थोड़ा सा अपना बस फिर रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा साथी हैं तो हम सारे मिनट आएंगे जी। मैं दूसरी बात ये है कि एक मेथड है डायलैक्टिकल मेथड, ये आज की मीटिंग NCJP ने जो की है ना, ये उसी डायलैक्टिकल मेथड की तरफ इशारा करती है। मैं कोई आइडिया दूंगा, मेरे दोस्त जवेद साहब, रियाज साहब, सीनियर लॉयर्स, सहाफ़ी, पॉलिटिशियंस हमारे दरम्यान मौजूद हैं, तो उससे NCJP
एक रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। आपने बताया कि जो मजहबी नौइयत के केसेस हैं उसमें पुलिस का रवैया क्या होता है। जजिस का रवैया तो मैंने बता दिया, हमारी फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस के केसेस में। पुलिस का रवैया मैं आपको एक जजमेंट बताना चाहता हूँ, महबूब एलियस भूपा, जस्टिस अली नवाज चौहान साहब की लिखी जजमेंट है। महबूब एलियस भूपा, उन्होंने जंग अखबार का एक आर्टिकल कोट किया था अपनी जजमेंट में। उन्होंने कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मुद्दई और जजिस ये सारे जन्नत की तलाश में रहते हैं केस को डिसाइड करने के हवाले से। नादिया से बात। गुड आफ्टरनून। वो क्या पूरी नहीं हो गया ताकि तो बात है कि सबसे पहले एनसीडीटी को मुबारकबाद के बहुत खूबसूरत यहाँ पे कायम की। हम बात करते हैं कि किस तरह हम मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाना चाहिए, उसके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे आर्टिकल 20 या 36 है। इसके अलावा जहाँ पे इक्वल सिटीजन की बात आती है, वहाँ पे इक्वल सिटीजनशिप नहीं है। जब इक्वल सिटीजनशिप नहीं है तो फिर आपको इक्वल राइट्स नहीं मिल सकते। तो पहले तो जिस चीज़ की बुनियाद पे सारे लॉ ड्राइव होंगे उसके अंदर अमेंडमेंट लेके हैं। हम पिछले दिनों रिसर्च वर्क कर रहे थे तो उसमें आर्टिकल 20 को जब बकौर पढ़ा, हम तो फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर देख लेते हैं लफ्जी तौर पर, उसके अंदर देखें तो वो कहता है सब्जेक्ट टू लॉ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। फिर आपको मजहबी आज़ादी है, वो एक मजहब के लिए सब मजहब के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ वो मिनॉरिटी की बात आती है, वहाँ में भी यही बात आती है। अगर हम उससे पीछे आर्टिकल 19 पे चले जाएं तो वो भी बताता है, इसके साथ साथ वो काफ़ी सारी चीज़ें और भी बता देता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी है जब आप लॉ, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटरनेशनल रिलेशंस को, फिर इसके अलावा इस्लामिक जो तालीमात है उससे मुनाफी कुछ ना हो, फिर आप बात करेंगे तो उससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आगे आप बात करते हैं मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन, जब कॉन्स्टिट्यूशनल उसके साथ डुअल नेचर का है तो वो कभी भी आपको डुअल नेचर वाला कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इसी तरह हमारे ही एशिया के अंदर हमारा सलामी भाई एक मुल्क है बांग्लादेश। बांग्लादेश कहता है कि स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लामिक है जिस तरह पाकिस्तान का, लेकिन जहाँ पे मिनॉरिटीज़ की बात होगी, मिनॉरिटीज़ को वहाँ पे एक्सेप्शन होगी कि वहाँ पे उनके रिलीजन को देख के उनको उसकी बेस पे टारगेट नहीं किया जाएगा, जो भी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो की जा सकेगी। किरण साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? शॉर्ट टाइम में प्लीज। इससे पहले तो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। जैसे सब साथियों ने कहा, इतनी तादाद में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का एक जगह पर जमा होना और इस स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करना मेरे ख्याल में अपने आप में कामयाबी है। मेरा क्योंकि मदर ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ख़ास उनसियत है NCJP के साथ और इसके काम और ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, और खुशी इस बात की भी है कि इसी तवज्जुह से बहुत से ऐसे साथी जिनको मुख्तलिफ फैमिली इंगेजमेंट्स की वजह से, मसरूफियत की वजह से मैं नहीं मिल पा रही थी, आज मुलाकात भी हो गई। नादिया ने बहुत ब्रॉडली काफ़ी चीज़ों को कवर किया। मैं सिर्फ जितना मैं समझ पाई हूँ आपके लंबे से सवाल को, वो ये है कि जो ख़वातीन मुखला के ऊपर अगर हम रहें, और ख़ास तौर पर हमारी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं उसमें मेनली क्रिश्चियन मुखला नज़र आती हैं जो बाहर में। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि हम अक्सरियत से और हम रियासत से मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ के लिए हकूक़ लेने की बात कर रहे हैं। वो प्रोसीजर हो, वो आइन में तब्दीली हो, वो नए कवानीन का बनना और इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि विद इन कम्युनिटी भी इस वक्त 90% से ज़्यादा मेरा ख्याल है हम क्रिश्चियन कम्युनिटी और हर तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमने खुद कितना अपने लिए इस तमाम काविशों पे पनपने के लिए माहौल पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा
ताल्लुक है आसमा जहां लीगल एड सेल के साथ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी हुई हैं। वी वांट टू थैंक द ऑर्गेनाइजेशन सो मच। जब आपने बात की थी बार वुमेन पार्टिसिपेशन की, फीमेल वकला की बात की थी, इसमें बहुत ज़्यादा जो अहम बात है जो मुझे लगता है एक अल्फाज है और एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा बॉडीज़ और लोग यूज़ करते हैं, सियासतदान भी यूज़ करते हैं, वो ये है यूथ के बारे में हर बंदा प्लान्स तो निकालता है, बजट भी निकालता है, बट हम वहीं के नहीं हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर बहस करना चाहूँगी कि हमारे 20 साल 10 साल पीछे हैं। हमने जब आसमा जहांगीर की फ़ाइट देखी थी, हमने सलाम मसीह का केस देखा था, सलमा मजीद का केस देखा था, ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस देखे थे जो इन्होंने हिना जलानी साहिबा ने और भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडीज़ ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ पर मैं ये इस बात का ज़रूर जिस पर मैं वाज़ेह तौर पर बात करना चाहूँगी, इसके आज हम उस टाइम पे नहीं करें जहाँ पर हम सारे अकड़ थे, हम सारे लोग दूर तो चले गए हैं, इसके अलावा हम डिवाइड हो गए और इसलिए हमें हमारे जितनी भी मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इन्होंने बात की थी क्रिश्चियन वुमेन की, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की। मैं ऐसे कहती हूँ कि जितने भी अल्लाह माफ़ी के ब्लास्फेमी के केसेस होते हैं उसमें मुस्लिम वुमेन भी थ्रेट में होती हैं, मुस्लिम मैन भी थ्रेट में होते हैं। आपकी जो अदालतें हैं, सेशंस कोर्ट में कितनी ज़्यादा शूटिंग्स होती हैं। हमने इन इश्यूज़ को आइसोलेशन में देखना नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहले हमारी यही गलती है कि हम इन इश्यूज़ को आइसोलेशन में देखते हैं। हमने इन इश्यूज़ को देखना चाहिए ब्रांडेड स्कीम ऑफ वेलनेस एज प्रॉपर इश्यूज़ जो हमारे समाजी तौर पर बहुत डीपली रूटेड हैं। और मैं यहाँ पे आर्ग्यू करना चाहूँगी कि अगर हम यूथ की बात करें, खासतौर पे यंग फीमेल वकला की बात करें, तो हमें मिला है एक ज़मीन मिली है जो रो रही है, हमें मिली है एक अर्थ जहाँ पे क्लाइमेट क्राइसिस आया है। हम वो जनरेशन है, हमें टूटा हुआ प्लानट मिला है, हमें टूटी हुई इकॉनमी मिली है, हमें टूटा हुआ बार मिला है जो 26-27 अमेंडमेंट के बाद भी नहीं निकल सका बाहर। 2007 की मूवमेंट नहीं हो सकती दोबारा बाहर। हम सब बहुत कंफर्टेबल हो गए और हम सब अपने ही छोटे छोटे ग्रुप्स में कहते हैं कि हम एडवोकेसी कर रहे हैं, हम एक्टिविज्म कर रहे हैं। हमें उन ग्रुप्स में से निकलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि चाहे वो एक खातून है या चाहे वो एक माइनॉरिटी है, हम सब की बाय द एंड ऑफ द डे स्ट्रगल और जो फाइट है वो शायद इतनी मुख्तलिफ नहीं है एक दूसरे से। तो जहाँ तक बार की बात है, जहाँ तक बात है फीमेल वकला की, एक तो ये है कि प्रोटेक्शन वहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पर बार को इंगेज करना चाहिए जो एक आसान काम नहीं है। मैं बताता चलूँ, मिसाल सेंटर माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया है। जड़ावाला इंसिडेंट के बाद बनाया गया था क्योंकि जब हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो हमने सिर्फ ये देखा था कि इट्स अ गैप बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, जिसको शरपसंद नाफी ने यूटिलाइज करके तो मुल्क पाकिस्तान की साख को बहुत नुकसान पहुँचाया था, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल। तो इस गैप को मिनिमाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए मिसाल सेंटर बनाए। ये ना सिर्फ लाहौर में है बल्कि ये पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंटेड है और मौजूद है। मिसाल सेंटर ना सिर्फ ऐसे 295C जैसे केसेस पे काम कर रहा होता है, बल्कि मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हों, उनके जायदादों के तनाज़े हों, उनके आपस के जो पैसों के लेन देन हैं, आइदर इन बिटवीन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी टू मेजॉरिटी, ये नहीं मैटर रखता। क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमारे जो कुछ लॉज हैं माइनॉरिटी के डिफरेंट है, जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी का लॉ डिफरेंट है, जो हमारी खवातीन है वो पूरा हिस्सा रखती हैं, जबकि अगर हम मेजॉरिटी में जाए तो उनका 1.5। इसी तरह जब हम सेपरेशन का लॉ है वो हमारा एज पर मेजॉरिटी डिफरेंट है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मिसाल सेंटर बनाया। मिसाल सेंटर की खूबसूरती ये है कि इसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं वो माइनॉरिटी से। आई एम ऑल्सो फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड दैट्स व्हाई आई एम लीडिंग मिसाल सेंटर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे मौजूद हैं और ये ला सकते हैं। हम चाहेंगे कि जो खास तौर पे आज पार्लियामेंटेरियन हैं हमारे दरमियान मौजूद इमानुअल साहब, तो मैं इनसे जो है सवाल करना चाहूँगा। इमानुअल अतर साहब जो हैं वो काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं, उनका इजलास की है, तो उनके साथ मेरा सवाल है कि पंजाब असम्बली और हुकूमती मजहबी अक़लीतों को दरपेश कानूनी और इंसानी हकूक़ के मसाइल, ख़ुसूसन जबरी शादी, कम उम्री की शादी, जबरी तब्दीली मजहब और मज़ीद इंक़राज़ के मक़ामात में कानून साजी और हुकूमती पॉलिसियों के जरिए क्या हिकमत अमली कर रही है। ऑनरेबल रेवरेंड फादर प्रणाम मनोहर साहिब, नेशनल डायरेक्टर NCJP, अकला साहिबान, साफ़ी साहिबान, फादर साहिबान, सिविल सोसाइटी, मॉडल खवातीन हज़रात, बड़े तबकात के साथ आप सब की खिदमत में मेरी तरफ से आदाब और सलाम पहुँची। मैं आज सबसे पहले
NCJP के तमाम उहदेदारान को, ज़िम्मेदारान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए और मज़हबी अक़लियतों के हकूक़ के लिए इस वक्त अज़ीज़ में बड़ा अमली, जामिया और ठोस किरदार अदा किया है। मैं चाहूँगा इन सब के लिए कि भरपूर ताली बजाई जाए। जहाँ तक रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात है, तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन 25 साल से रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए काम कर रहा हूँ और मैंने हमेशा रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के जो हकूक़ हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, तमाम इश्यूज़ आप सब बैठे हुए हैं, समझदार बैठे हुए हैं, सब ने मेरी स्पीचेस सुनी भी होगी। मैंने एक मिनट भी नहीं कभी अपना वहाँ टाइम ज़ाया कि मैंने सारे इश्यूज़ जो है, हर इश्यूज़ पे जो है असेंबली में आवाज़ आपने रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए उठाई है। तो काफ़ी हद तक हम 2 सालों में कामयाब हुए हैं कि हमने अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो है वो मिनॉरिटी कार्ड में जो 10.5 लाख गरीबों की मदद होती है, तकरीबन 1 लाख के लिए। और उसके बाद हम जो पहले इस्लामियात पढ़ाई जाती थी, अब ये हमारी हुकूमत ने हमारी ग़िज़ाए पर जो है अभी हमारी बाइबल मुक़द्दस जो है, तमाम मज़ाहिब की जो मज़हब के तालीमात है वो पढ़ाई जाएंगी, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक लगी। तो इसी तरह जबरियत तब्दीली मज़हब के हवाले से हमेशा बड़ी आवाज़ बुलंद की है। कम उम्री की जो शादी है उसके लिए आवाज़ बुलंद की, और वो 18 साल की उम्र का जो कानून है वो पास हो चुका है पंजाब असेंबली में। तो अभी भी मेरी जो नेशनल NCJP के तमाम उहदेदारान से, फादर साहब से रिक्वेस्ट है, जो भी आप मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए जो भी ड्राफ्ट आप पेश करेंगे, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बगैर किसी खौफ से जो आपका ड्राफ्ट है, जो आपके जो देंगे, वो असेंबली में पेश करूँगा। तो सिर्फ एक छोटी सजेशन के लिए टाइम थोड़ा सा कितने बोल रहे हैं कि ये हम उस वक्त ये देखें, हम सेमिनार्स, ये कॉन्फ्रेंस जो होती रहती हैं, ये हम अपना 30-35 साल से यही देख रहे हैं, सारा कुछ होता है, खाने खाते हैं, कॉफ़ियाँ पीते हैं, सारे बैठते हैं, लेकिन अभी तक हम कोई मंजिल तक कभी नहीं पहुँचे ना जी। तो मेरी सिर्फ एक ये है कि अगर मंजिल तक आपने पहुँचना है तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ, हमें अपना लालच ख़त्म करना होगा। जो हमारे दरमियान लालच है, और अगर आपने नुमाइंदगी करनी है कहीं, तो फिर भी आपको लालच जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि लालच जो है प्यारा साहब वो खौफ पैदा करता है, और खौफ से कभी कौमों की नुमाइंदगी कभी नहीं होती। तो इसलिए लालच ख़त्म करें और आपस में इत्तेहाद रखें, क्योंकि इत्तेहाद जब होगा तो फिर ताकत बनेगी, और जब ताकत बनेगी तो खुदा के फ़ज़ाइल से सारे मसाइल जो वो हल होंगे। और हम सबको जिस तरह आज मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग NCJP के प्लेटफॉर्म पर इस फ़िक्री नशिस्त में इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह आगे भी हम सबको इकट्ठे होकर इत्तेहाद करके इकट्ठे होकर फिर जोर लगा के फिर अपने मसाइल के लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। अगर आप हम इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करेंगे, बगैर लालच की आवाज़ बुलंद करेंगे, तो हम सुबह की उस मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती गीत गाएगी, वो सुबह हम सब की मुश्तरका जदोजहद से आएगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस। बहुत शुक्रिया। इसमें यूसुफ बेंजामिन को एक सवाल करना चाहूँगा कि वो एक चैनल भी चला रहे हैं करते हैं, लेकिन काबिल एहतराम फादर बर्नार्ड इमानुएल, फादर डोमिनिकन फादर हैं साहिवादी, फादर नदीम जोसेफ और फादर बशारत और तमाम बैठे हुए मौजूद मेहमान और हॉल में भी सभी। बहराम का सवाल बिल्कुल सादा और जवाब पूरी मैं ये समझता हूँ, मैं 3-4 इंटरनेशनल कैथोलिक मीडियाज़ के साथ काम करता हूँ, मैं जनरल मीडिया के साथ नहीं करता, कैथोलिक क्रिश्चियन भी नहीं बल्कि कैथोलिक मीडिया के साथ काम करता हूँ। और मैं जब भी कोई माइनॉरिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोसिक्यूशन के केसेस सामने आते हैं
جب کبھی فیکٹ فائنڈنگ کے لیے جانا ہو یا باقی کوئی چیزیں فالو اپ کے لیے، تو ایک مسئلہ بہرام صاحب جو سامنے آتا ہے وہ ایک روایت بن چکی ہوئی ہے کہ ہم ہمیشہ وکٹم کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مالی طور پر یا کھانے پینے میں یا دوسرا. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم بھی جب جاتے ہیں ایز اے جرنلسٹ تو وہ ہمیں بھی ہم اسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہم شاید ان کے لیے کچھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہماری مشکلات میں، ہماری معلومات اکٹھی کرنے میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے. دوسرا، کچھ دوستوں سے ہم چاہے کوئی این جی او کے ہوں یا کوئی وکلا ہوں یا کسی اور طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہم جب پاسٹرز کے ساتھ بھی ہم جب ان سے کوئی معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہماری روزی روٹی چھیننے آئے ہیں. حالانکہ ہمارا تعلق صرف اتنا ہوتا ہے یا ہمارا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کی یا پسے ہوئے معاشرے کی یا خاندانوں کی ہم آواز بن رہے ہوتے ہیں. ہم صرف وہ بتانا چاہتے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی میڈیا چینل پہ کوئی ایک خبر ایسی آ جائے تو وہاں کی جو خبر ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں کسی میڈیا کا یا کسی مخیر حضرات میں سے کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اکثر ان کا ہو جاتا ہے. ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ ہم اطلاع دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہے اور اس میں کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اس نظر سے کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے. دوسرا، بس اس حوالے سے ایک ہم خاص طور پہ اہتمام اس بات کا رکھتے ہیں کہ کہیں بھی کسی قسم کی کوئی فیک نیوز ہمارے سے نہ ہو سکے. میں اپنی ذمہ داری اس لیے نبھاتا ہوں کیونکہ میں چونکہ ایک کیتھولک میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں تو مجھے بہت محتاط ہونا پڑتا ہے کیونکہ پوری نمائندگی چرچ کی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں فیڈریشن آف ایشین کیتھولک بشپ نعیم صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا PCBC کا، پاکستان کیتھولک بشپس کانفرنس کا، تو مجھے یہ احساس بھی رہا کہ میں فیڈریشن آف ایشین کیتھولک جو ایشیا بھر کے جتنے بھی بشپس ہیں میں ان کی بھی نمائندگی کرتا ہوں، ان کے لیے بھی لکھتا ہوں اور سارا کام کر رہا ہوں. تو لہٰذا بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ لکھنا ہوتا ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا باقی دوستوں سے بھی جو جرنلسٹ ہیں کہ فیک نیوز کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. بہرحال ایک میں سجیشن دے دوں آپ کو، اور اس کے وہ طارق بھی ہم ذکر کر رہے تھے، باقی میں ایک سجیشن یہ دے دوں. آج کی نشست بہت اچھی ہے نا، آئی اپریشیٹ اٹ. اگر کسی وقت اس کا فالو اپ ہو تو اگر آپ جرنلسٹ کو الگ کر دیں، سول سوسائٹی کو الگ کر دیں، وکلا کو الگ کر دیں تو اور گہرائی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. آپ سب کی توجہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. طارق بھائی، آپ سے سوال ہے کہ یہ میڈیا کی رپورٹنگ ہے جو کرتے ہیں، لیکن کیا واقعہ ہونے سے پہلے وہ میڈیا کو رول ادا کر سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ یعنی کوئی ایڈوکیسی، میڈیا کی اویئرنس، یہ میں بات کروں گا. جی بہت شکریہ. کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس. کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس. دو نینا مت کھائیو موہ پیا پیوے پیاس. اور یہاں پہ میں پیا کہہ رہا ہوں جو ہمارے تھاٹس ہیں، جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، جن کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ یوٹوپیا جہاں پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے ایگزیکٹلی وہی میری سوچ اور میری فکر تھی آج کے اس خاص فورم کے حوالے سے. بفور آئی کم ٹو دی پوائنٹ، آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک NCJ جی، فادر جی، اور آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو for arranging this such a successful event جس میں تمام مکتبہ فکر سے ہمارے دوست ساتھی موجود ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے کام میں طاق ہیں، سب ایکسپرٹس ہیں. So I really appreciate this session. پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی کھولتے ہوئے پانی میں اپنی شکل مت دیکھیں. دوسری بات میں اس ضمن میں یہ کروں گا کہ دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی ہے یا کسی قسم کی کوئی مشکل ہے، جب تک آپ اس کو مناسب طور پر ڈائیگنوس نہیں کرتے، جب تک آپ اس کی تشخیص نہیں کرتے، نہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں.
دانشور کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی بیماری کا 70% علاج اس کی ڈائگنوس پہ ہوتا ہے، اس کی تشخیص پہ ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بات کی، کسی بیماری کی، کسی مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ وہ مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں. ایک کہاوت ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کہ کتا آپ کا کان کاٹ کے لے گیا تو فوری طور پر کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی، کان کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا کہ کان ساتھ ہے یا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور ایک جرنلسٹ، نہ صرف میری بلکہ ہر ایک جرنلسٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، obligation ہے کہ وہ حالات کو، معاملات کو پہلے جانچے پرکھے اور پھر انہیں صفحہ کرتاس پر اتارے، پھر دیکھے کہ وہ کیا لکھنا چاہ رہا ہے یا کیا لکھتا ہے. عام طور پر ہم نے بھی جب اسٹوڈنٹ دور میں جب NCJP کی کانفرنس جو ہے وہ اٹینڈ کی تو ایک وہ پروگرام تھا 7 W's and 1 H, 7 wives with 1 husband ہے. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ فیکٹس فائنڈنگ، جب تک آپ کو فیکٹس فائنڈنگ کی سمجھ نہیں ہے، جب تک آپ کو حقائق تلاش کرنے کا تجربہ نہیں ہے، تب تک آپ نہ تو حقائق تلاش کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس کویسچن ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کویسچن تلاش کر سکتے ہیں، اس کا آنسر کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملے تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی بہرام صاحب، اور شکریہ NCJP جنہوں نے آج کا جو ایونٹ جو آرگنائز کیا. ہمارے بہت سارے وکلا دوستوں نے اپنی رائے دی، ہمارے سیاسی دوستوں کی رائے آئی، ہمارے سماجی اور صحافی دوستوں کی رائے آئی. آج چونکہ ان کا جو سوال ہے بہرام صاحب کا وہ صحافیوں کے حوالے سے ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کو بگڑنے سے پہلے کیسے روکا جا سکتا ہے. اگر ہم کبھی تھوڑا ریسرچ کریں نیپال کی تو وہاں پہ جو صحافی ہیں وہ کمیونٹی بیسڈ جرنلزم کرتے ہیں. وہ کمیونٹی کے مسائل کی نشاندہی کے اوپر لکھتے ہیں، اس کو بات کرتے ہیں. اور آج بھی ہر یونین کونسل کے لیول پہ نیپال کے اندر جو صحافی گروپس ہیں، تنظیمیں ہیں، جو چھوٹے لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ جو مسائل ہیں ان مسائل کی نشاندہی اپنی میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کرتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ تھوڑا سسٹم فرق ہے، ہم وہ خبر مانتے ہیں جو کسی بڑے پلیٹ فارم سے ڈان کے اندر ہے، دی نیوز کے اندر ہے، یا نیشن ہے، یا تو بڑے اخبارات. اس کی صداقت کو جاننے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھی خبر ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ہمارے مین اسٹریم کے اخبارات ہیں وہ ان کے لیے منورٹی، پرسیکیوشن، بلاسفیمی، ڈسکریمنیشن، پوسٹ ورژن کو ایشو، اہم ایشو ہے. ان کے لیے اہم ایشو ہے سیاست، ان کے لیے اہم ایشو ہے شو، ان کے لیے اہم ایشو ہے اسپورٹس، ان کے لیے اہم ایشو ہے بزنس. اس لیے معاشرے کے جو ولنریبل گروپس ہیں، وہ منورٹی ہیں، بچے ہیں، متاثرز ہیں، خواتین ہیں، ان کی خبریں آپ کو بہت کم ملتی ہیں مین اسٹریم اخبارات میں. ہمارے ایک ساتھی ادارہ اسلام آباد سے ارادہ، انہوں نے 2019 میں ایک ریسرچ کی کہ پاکستان میں مائنورٹیز کی خبریں کتنی چھپتی ہیں. جب انہوں نے اس پہ ڈاٹا کلیکٹ کیا تو بدقسمتی سے وہ 34-35 خبریں تھیں جن کا تعلق مائنورٹی کمیونٹی سے تھا. ان میں سے بھی آدھی خبریں سندھ سے تھیں، ہندو کمیونٹی خبریں تھیں، اور کچھ ایسی خبریں تھیں جو صرف اکتوبر کے مہینے میں چھپی تھی. وہ صرف آسیہ بی بی کا جو اس پر کیس چل رہا تھا، تو آسیہ بی بی کے کیس کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر آئیں، اور وہ اکتوبر کے مہینے کے اندر وہ خبریں جو چھپی.
اب چونکہ آپ کا سوال جو ہے تھوڑا میں مختلف آنا چاہ رہا ہوں. جی جی پلیز. ہمارے ہاں صحافی تک خبر تب آتی ہے جب خبر بن جاتی ہے, وہ مسئلہ بن جاتا ہے. اس سے پہلے شاید اس کی رسائی, اس کی سونگنے کی جو صلاحیت ہے, وہ اسمیل کرنے کی پاور ہے, اس کو اسمیل کر نہیں پاتی کہ شاید جڑا والا میں کیا ہو رہا ہے, سگوتر میں کیا ہو رہا ہے, یا شانتی نگر میں کیا چل رہا ہے. کیونکہ موسٹلی جو ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کے پاس اب تو میس کی میڈیا کرتے ہیں, خبریں جو آتی ہیں وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے. جی جی. ہمارے یہاں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ایک منٹ کی خبر, ایک پل کے بعد ایک خبر جو آپ کو نہیں مل رہی ہو. اچھا, اس میں سے بھی ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا بہت ساری خبریں اٹھاتا ہے, اس کی تحقیق کرتا ہے, اس کو چلا دیتا ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے کچھ ایسے دو صحافی بھی ہیں جو ہر خبر کو پرسیکیوشن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, حالانکہ اس خبر کا تعلق جو ہے پرسیکیوشن کے ساتھ, ڈسکریمنیشن کے ساتھ, فورس کنورژن کے ساتھ, یا ہمارے دوسرے ایشوز کے ساتھ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ MCJP کا پروگرام چکر کرنے کا. بہت سارے مانوس چہرے ہیں یہاں پہ جو کہ آلموسٹ سارے کانفرنسز کے اندر اور اس طرح کی نشستوں میں شامل ہوتی ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ جو ٹاپک آپ کا نیٹ ورکنگ امنگ دی لائرز, جرنلسٹ اور بار کونسل, تو بار کونسل کا پراپر نمائندہ تو یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ اس کے جواب کے اوپر ڈائریکٹلی آپ جواب دے سکے. جہاں تک لیگل ایڈ کی بات ہے, باقی حد تک لیگل ایڈ کمیٹی نہیں ہے جو کہ تو دونوں آپ کو فری لیگل ایڈ دیتی ہیں. اب اس کا کہاں تک فعال ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے, وہ تو بیسکلی بار کونسل کے نمائندہ ہی دے سکتے ہیں. جہاں تک آپ کا ٹاپک ہے پرو بونو لیگل سروسز فیتھ بیسڈ وکٹمس کو, تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہاں پہ تمام NGO سیکٹر سے لوگ موجود ہیں, تو جب یہاں پہ پرو بونو کا لفظ آتا ہے تو یہاں پہ پرو بونو کی حقیقت حیثیت موجود ہے, کیونکہ جہاں پر لیگل سروسز پرووائڈیڈ بائی دا پروفیشنلز ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ امید کرتے ہیں کہ پروفیشنل سے آپ لیگل سروسز پرو بونو بیس کے فیتھ بیسڈ وکٹمس کے ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں, تو ان کو پھر اس کے ریلیٹڈ ٹولس بھی پرووائڈ کیے جائیں کہ اگر وہ اپنی جو فیس چارج نہیں کرتے تو اس کے لیے ان کے ٹولس پرووائڈ کرنے سے مراد ہے کہ وہ اگر اس فیتھ بیسڈ وکٹم تک پہنچتے ہیں تو اس سے جو اس کے اٹیچ چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں کم سے کم. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروفیشنلز کے لیے اس جو صورتحال ہے جو کہ ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہوتی ہے, اس میں موب وائلنس کا بھی شکار ہوتے ہیں, اس کے علاوہ وکٹمز جو ہے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اس سینیریو کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ آرگنائزیشنس کو کرنا چاہیے. آرگنائزیشن بھاگ پڑتی ہیں. میں نے آج تک NCJP کے ساتھ بھی کافی دیر کام کیا, میں نے ساروں نے دوستوں نے کافی نے کام کیا, لیکن NCJP سے لے کر تمام آرگنائزیشن سے میں صرف یہ کہوں گا کہ جب آپ کسی پروفیشنل بندے سے یہ کہتے ہیں, خاص کر لائر سے, کہ وہ پرو بونو کام کرے, تو وہ ایک خاص حیثیت میں ٹریننگ لے کر پروفیشنلی عدالت کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. وہ ایسے وکٹم کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کی ایک پراپر ٹریننگز بھی ہونی چاہیے جو کہ اس میٹر کو ہینڈل کر سکے. لیکن یہاں پر پھر بات کروں گا, ایشو بن جاتا ہے فنڈنگز کا. فنڈنگ کے اندر آ کر بہت سارے لائرز جو ہیں وہ بیچ میں کہتا ہوں رگڑے جاتے ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ وہاں پر ایک دوسرے سے کیسز لینے کے معاملات میں وکٹم ہمیشہ سفر کرتا ہے. اور NCJP کا شکریہ مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں, آپ کا سوال یہ کہ فیوچر میں نوجوانوں کے لیے کیا امید ہو سکے. بکلا جو ہے دیکھیں, میری نظر کے اندر ہم وہی کچھ لیتے ہیں, حاصل کرتے ہیں جو ہمیں وراثت میں ملتا ہے, جب وہ انہیرنٹ کرتے ہیں تو بڑے ہی مثال بنتے ہیں چھوٹوں کی ترقی کے لیے, اور بڑے ہی جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں. تو میں اپنے وکلا بھائی یا رنجم صاحب, کاشف جنگل صاحب, استاد صاحب اور سرفراز صاحب اور جو اس سوترا صاحب کے ساتھ متفق ہوں, کرن افضال اور میڈم سوترا سے بھی. اور گزارش اتنی ہے کہ جب بڑے کوئی ایسی مثال چھوڑیں گے جس سے چھوٹوں کو نیگیٹو پیغام ملتا ہے, تو پھر جو راستے وہ جو مشکل کی طرف جاتے ہیں آسانیاں پیدا نہیں ہوتی.
हमें ब्रिज का किरदार अदा करना है बिटवीन द मीडिया, बिटवीन द लीगल फर्टर्निटी और स्टेक होल्डर्स और आप जैसे एन जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं दिन रात पर मौजूद है। देखिए अगरचे हम माजी में देखें तो 92 की बात करें तो उस वक्त आईडी कार्ड का इशू था, तो उसने रिलीजन का कानून का था, तो उसने जब चर्च पॉलिटिकल जो हमारी जमातें हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जब उन्होंने मिलकर एक जदोजहद की, तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क का सबसे बड़ा मजहबी अक़ीदतों का इकरार हुआ और उस वक्त लेना पड़ा। इसी वाले से देखें तो मुझे याद है कि NCJP ने अपने जो उस वक्त इश्तिहारात की शक्ल में, कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में, बाकी में जब जुदागाना इंतखाब था, उस वक्त पूरे मुल्क में बाइकाट भी किया, एक मुहिम चलाई और उसके साथ पहले तो शहबाज गढ़वी क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और बाद में ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें भी 2002 में एक कामयाब। जैसे बार बार बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया, इंसान को इंसान से दूर कर दिया गया। जब किसी को माइनॉरिटी कह दिया जाए तो वो तो मतलब प्रैक्टिकली उसको कह दिया कि ये एक अंतर इंसान है। और HRCP के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो इस वक्त जो हालात मौजूद हैं, जब 26वीं तरमीम की गई तो मैं पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग में था, वहाँ परवेज़ अशरफ भी आया था। जब 26वीं तरमीम कर रहे थे तो मैंने कहा कि इस तरमीम में तो आप ह्यूमन बेसिक राइट्स ही उड़ा रहे हैं। 8वीं आर्टिकल से लेकर आइन में 28वीं तक बेसिक राइट्स है मेंशन किए हुए, वो उसमें ख़त्म कर रहे। तो उनका जो वकील लीडर था जो ये बना रहा था अमेंडमेंट, वो कहता है कि अब हमने उसको निकाल लिया, ठीक कर दिया। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी, जिसे हम बेहतर पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, वो इसमें शामिल थी कि ये आर्टिकल ख़त्म हो जाए। जब आइन में ये खिलवाड़ होता है और सियासी पार्टियां मौजूद होती हैं, 26वीं और 27वीं तरमीम में तमाम पार्टियां मौजूद हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग मौजूद हैं जिन्हें माइनॉरिटी, मैं ज़ाती तौर पे किसी को माइनॉरिटी नहीं कहता, इंसान इंसान है, लेकिन चूँकि लिखा हुआ है कईयों की रोज़ी चल रही है इसमें, तो वो माइनॉरिटी कहने आते। तो वो माइनॉरिटी कौन होता है माइनॉरिटी? जब 47 से पहले हम माइनॉरिटी थे मुसलमान, जब तो बड़ी तकलीफ में थे, जब तो नया मुल्क बना लिया। अब अगर कोई माइनॉरिटी कहता है कि मुझे ये तकलीफ है, वो दूर नहीं करते आप। तो ये सिलसिला ना, एक और HRCP के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आसमा जहांगीर का राइट हैंड है तारक, आपको पता है साहब, उसने 26 से 27 तरमीम आगे पेश किए और आगे भी करामात करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? किस चीज़ की डेफिनेशन आप वैसे कर लें जो लिखी हुई। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि NCJP के हम बड़े मशहूर हैं, हमारे रिलेशन सबके साथ हैं, हम हमेशा काम करते हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी मिलेगी। ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ था कि मीडिया कवरेज करता है कि नहीं, मीडिया कवरेज नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक आप नहीं बताएंगे। NGO सेक्टर पाकिस्तान में पावरफुल है। अब देखिए NGOs हमें बताती हैं और हम उस पर लिखते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हर एक पे लिखता है, एक कम्युनिटी पे नहीं लिखता, वो हम सब जानते हैं। और वो अहम जो कम्युनिटी है जिसमें नहीं लिखा जाता या नहीं लिखा जा सकता या कुछ भी है, वट एवर भी है, ठीक है ना। बाकी क्रिश्चियंस के बारे में ना लिखा जाएगा तो सोचे में लिखा जा सकता है। क्रिश्चियन पावरफुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू राम साहब। बहुत सारी बातें हुई। मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि आर्टिकल 25 ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से जब आप बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो वहाँ पे यही बात आती है कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मेरे पास एक केस आया, क्रिश्चियन लड़की थी, शी गॉट FSC मार्क्स अराउंड 890 समथिंग, तो उसका मेरिट नहीं आया। तो उसको जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बेसिस पे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, और जो उसके मुकाबला था जो स्टूडेंट वो मुसलमान और हाफिज था, उसको उन्होंने 20 मार्क्स एडिशनल दे दिए कि जनाब क्योंकि ये हाफिज है इसको 20 मार्क्स दे दें तो उसका एडमिशन करवा दें।
उसका एडमिशन हो गया, हमने चैलेंज किया। तो हमारे यहाँ पे जस्टिस थे साहब थे, क्लास फेलो भी है सबसे पहले। अच्छा, तो यहाँ पे थे जस्टिस सईद अख्तर साहब 2005 में। तो मैं उनके पास लेके गया तो वो बड़े अग्रेसिव थे, वो फौरन ये क्या है, मैंने कहा जी हम तो हमें डिक्लाइव किया गया एडमिशन से, तो हमें कोई मेडिकल कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा, तो हमारे तो मार्क्स हैं हमसे कम नंबरों वाले बच्चा जो है वो हो गया। तो कहते जी कैसे, मैंने कहा उनको दे दिए ना 20 मार्क्स एडिशनल दे दिए ऑन द बेसिस ऑफ द कुरान। तो फिर क्या हुआ, वो मुसलमान है, हाफिज़ कुरान है, उसको मिल गए। मैंने कहा जी हमें क्यों नहीं मिले, आपको क्यों दें? तो मुझे क्योंकि ब्रीफ किया हुआ था सारा केस में पड़ा हुआ था। मैंने कहा जी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेकिज्म। तो वो क्या है, मैंने कहा जी कैटेकिज्म इज अ नॉलेज एंड प्रोफेंसी इन द नॉलेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो आप उसमें दे नंबर। खैर उन्होंने एडमिट की फॉर रेगुलर हियरिंग, और उसके बाद मुझे अर्थ शेर काउस जी जो लेट टाउन में लिखते थे, उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा जी यार वो हमारी बच्ची है, तो उसको आप करें, जज को बोल दें। मैं कहा जी मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मैं उसको कह सकता हूँ। तो खैर उन्होंने मुझसे वो कॉलम लिखा, उन्होंने डाउन में 2005 का मतलब पढ़ा हुआ आर्टिकल, उन्होंने उसमें इसको मेंशन किया, डिक्लाइव किया गया है। यानी 425 आर्टिकल के मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट है और अभी तक यहाँ पे इवॉल्व नहीं हुआ। ज़्यादा ताल्लुक है, सर ने कहा कि जी हमने ये आर्टिकल जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी, तो सर अभी हम 53 ईयर्स ऑफ पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास 53 साल हो गए हैं। तो इस तरह की माशाल्लाह से हमने नहीं तो कर दी। 53 सालों में हम अभी तक वहाँ पे कोर्ट में नहीं गए कि दीज आर्टिकल्स आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर अगेंस्ट दी ओन माइनॉरिटी, नॉट ओनली द क्रिश्चियंस। एक तो सर ये मेरी सजेशन है। आगे जी कानून साजी जी जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी कानून साजियाँ होंगी वो मेरा थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक्शन में। एक एग्जांपल देके ख़त्म करता हूँ कि सबसे बड़ा जो तगड़ा कानून बना बलूचिस्तान में वो फेडरल शरीयत कानून 100 ऊपर किया था सैयद मोहम्मद अली साहब, और उसी का बैकअप पंजाब गवर्नमेंट और उसी का बैकअप अब फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं समझता हूँ कि आप तैयार करें मटीरियल बहुत शुक्रिया। ये रब्बान नसीम सवाल का शुक्रिया अदा करते हैं कि सारे बहुत सारे चीज़ में मुस्लिम भी हैं, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग इधर बैठे हैं। मैं रिसेंटली हमने जो माइनॉरिटी डे मनाया और वहाँ पे इंटरफेथ हार्मनी के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई मसावात की, लेकिन मेरे मुताबिक ये मेरा नज़रिया, आप इख्तिलाफात रखें बेशुमार रखें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी इज़ नॉट अब्यूज़। ये 1947 से पहले मुस्लिम भी सारे माइनॉरिटी में, और या बाहर के ममालिक में ये सारे माइनॉरिटी में, व्हाट अ बिग डील। लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि हम ये आज नेशनल कमीशन जस्टिस एंड पीस की बात करते हैं। व्हाट इज़ पीस फॉर मी, और आपके लिए क्या डेफिनेशन है पीस की? एक मतलब क्या, मैं बुनियादी बातें कर रहा हूँ, जैसे कहते हैं बुनियादी हकूक का पर्चा ही फाड़ दिया बीच में से, तो मैं ये बात करता हूँ व्हाट इज़ पीस फॉर मी, और जस्टिस क्या है, व्हाट इज़ जस्टिस? जस्टिस ये तो नहीं तो जितने बैठे हैं सबको एक एक तोड़ा दे दो, ये जस्टिस बन गया? हाँ जी, ड्यू पोर्शन अकॉर्डिंग टू कैथोलिक टीचिंग, गिविंग ड्यू पोर्शन टू एवरीवन, दिस इज जस्टिस। ड्यू पोर्शन में क्या है, अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो उसे कम से कम 2-3 आटे के तोड़े दो, जिसके 2 हैं उसे एक भी चलेगा। तो आप ये नहीं सबको एक जैसा उठा दें। तो मैं रेवरेंड फादर बर्नार्ड एमैनुअल को, जो डायरेक्टर नेशनल डायरेक्टर हैं NCJP के, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने सारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स क्रिश्चियन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और उनके साथ ऐसी नशिस्त रखना जिसमें नेटवर्क कायम किया जाए। भाइयों, माइनॉरिटी होना इज नॉट अब्यूज। आप जिस जिस अदारे में हैं, जिस जिस जगह पे आपको खुदा ने खिदमत दी है, आप उधर ऐसा काम करें कि लोग आपकी मिसाल दें, लोग इस बात का ऐलान करें, ये देखें ये क्रिश्चियन क्या, जो हमारे बच्चों ने भी मैट्रिक के रिजल्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, उनके साथ बाकी मेजॉरिटी वाले भी लोग दौड़ रहे थे, लेकिन वो नुमाया रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हम ऊपर नहीं आ सकते। हमारे बहुत सारे शोबाजात में हमारे अपनी लड़कियां और लड़के जो है वो नुमाया कारकर्दगी करके तो क्रिश्चियनिटी और गॉस्पेल वैल्यू की वहाँ पर मिसाल बने हुए हैं। तो मैं इस बात का
सिर्फ ये आज मैं यकीनन एक फादर जी को और सारी टीम को मैं सजेशन दूंगा कि भाई हमेशा जो भी नशिस्त होती है उसका कोई आउटपुट होना चाहिए। चाय की प्याली इससे और बहुत अच्छी, हम सारे पीते हैं, सारे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जिस चीज़ का आउटपुट नहीं है, हाँ इधर मारिया शहबाज की बात कर रहे थे, क्या हमारे हाथ में आए? इनजस्टिस जो है ये चलता रहना है, लेकिन हमारी आवाज न दबे। ठीक, आवाज हमारी जो है वो चाहे बियाबान में हो, चाहे आज ये इस हॉल में है, आवाज भी दबनी चाहिए। इसके लिए स्ट्रगल करते रहना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको ऑफ करने लगा हूं। हम अभी रोमन कैथोलिक चर्च 800 साला सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पूरे साल में उनकी हो रही है असीसी के अंदर। उस शहर में चले, हमें भी सादत मिली उनकी जियारत करने की, तो वहां पे गए। अच्छा, उनका आप मिडल जो दौर में क्रूसेड्स का दौर था, जंगो जदल थी, तो वहां पर वो उस वक्त के अरब एम्परर के पास जाके जो तलवारों के साथ और बालों के साथ खड़े थे, उनके दरमियान वो बिल्कुल इन दो हाथों के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा जंग नहीं करने आया, मैं अमन का परचम लेकर आया। और जंगें रुकी और उसके बाद यानी कि आवाज है ना पीस की, और उन्हें फिर आज तक याद किया जाता है एम्बेसडर ऑफ पीस, क्योंकि हम क्रिश्चियन एम्बेसडर ऑफ पीस के ही फॉलोअर हैं। और उनका नगमा आज तक मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर, और यूरोप में गाया भी जाता है, लॉर्ड मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। ठीक है, खुदावंद हमें इस नशिस्त के जरिए बहुत सारी बरकतों से नवाजे, और हम जहाँ जहाँ भी हैं, जरूरी नहीं है कि हम मेन सीट पर बैठेंगे तो फिर ही बात बनेगी। भाइयों, लिस्ट पे भी हो तो खुदा तुम्हारी वर्किंग देखकर तुम्हें एक दिन सरफरू करेगा। खुदावंद सबको बरकत दे, और फादर जी को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने आज की ये नशिस्त की है। बहुत शुक्रिया। तो आखिर में फादर इमानुएल बर्नार्ड को दावा देते हैं जो एनसीजेबी के नेशनल डायरेक्टर हैं, हम उनसे जो है उनका इजहार ख्याल और इजहार तशक्कुर। सबसे पहले तो ज़रूर मैं आज की इस नशिस्त को जो कामयाबी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, ज़रूर ब ज़रूर इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, उस अमल के लिए कि क्या ही खुशनुमा है उस मुबशर के कदम जो खुशखबरी की बशारत देते हैं। आप सब जो बुलाए गए हैं इसी बशारत के लिए बुलाए गए हैं, इसी खुशखबरी के लिए बुलाए गए हैं, इस नेक काम के लिए, खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। और इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इस बात को ज़रूर समझता हूँ कि हम आम लोग नहीं हैं। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं इन इश्यूज़ के साथ, तमाम तक बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, इनके साथ अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम आम लोग नहीं हैं। बहुत दुनिया, इतने बड़े इश्यूज जो हम यहाँ लेकर आए हैं ना, ब्लास्फेमी लॉस, फोर्स कन्वर्जन, फोर्स मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं भाई, इससे भी बड़े साथ साथ और भी हैं। तो उनके लिए ये तादाद जो है ना, ये राई के दाने के बराबर है। हम समझ रहे हैं ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा कामयाबी से हमने इसको जो है इख्तिताम की तरफ ला रहे हैं, लेकिन यकीनन इस सोच के साथ इतने लोग जो हैं वो काफ़ी नहीं। एक बहुत बड़ा नाम यीशु मसीह जब कहीं जाते थे तो लोग खुद उनके पीछे हजारों लाखों लोग, एक मजमा, क्योंकि ज़रूरत थी उन्हें, कुछ नज़र आ रहा था। जब नज़र आ रहा था ना तो फिर वो उनके पीछे आते। तो ये जितनी बड़ी भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं कह लें, या इश्यूज़ हैं, उनके साथ हमने मिलकर चलना। अगर हम ये कहते हैं ना नेटवर्किंग में हमारी कमी रहती है, या खा पी लिया, बैठे नशिस्तें की और काम नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इत्तेहाद ही नहीं।
हम एक काम करता है तो दूसरा उसके चार पीछे लगे होते हैं जो उसकी कामों को डिनाई कर रहे होते हैं। लोकल लीडरशिप जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हम अपने घर को अप्रिशिएट नहीं करते, 100 मील दूर बात कर रहे होते हैं। हर रोज मीडिया पे आप देखें, हर कोई बंदा बैठा हुआ है ना, कोई 100 दफा वो गुड मॉर्निंग करेगा। कहां करेगा? पूरी दुनिया में हजारों मील, लेकिन अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने घर में वो गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा होता। कितने काम कर रहे हैं सिर्फ लाइक्स के लिए। बहुत सारे मीडिया पे जो बैठे हैं ना, हम सब सिर्फ लाइक्स ढूंढते हैं। कितने इस पे मीडिया पे लाइक्स मुझे मिले हैं। मैं कभी कभी कहना कभी यही तो देखिए सानू घरों भी कोई मुंह लांदा है, घरों भी अप्रीशिएट करता, कोई घरों भी लाइक करन दिया है। कितने टुरे फिरने पे भाई असीं इन्ना वड्डा वड्डा बोलने करने पे, लेकिन अंदर की है। यकीन करें यही चीज़ की हमारे अंदर कमी है। पहले हम अपने आप में नहीं देखते, हम उंगलियां उठा रहे हैं। हर एक का तिनका कड्ढन डे हैं, शतीर नहीं वेंदे। हम करप्शन की बातें करते हैं, दूसरी चीज़ों की, ये वो मीडिया की, जर्नलिस्ट की, वकला की, मसाइल की, परेशानियों की, पता नहीं क्या क्या हम लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक यकीनन जब तक हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अपनी ज़ात को सेटिस्फाई नहीं ना कर पाए, किसी को नहीं कर पाए। पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना कि जो मैं कर रहा हूँ यकीनन ये ठीक है, सही है या फिर ठीक नहीं है।